are going to begin with the lesson number 14 of your class 6 English grammar, that is our champion. So let's. Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 14 of your class 6 English, that is our champion. So let's begin with this lesson. A young boy walked home dragging his feet. एक यंग बॉय, एक छोटा बच्चा अपने मतलब फीट को ड्रैग करते हुए अपने घर पहुंच गया वापस. His parents were waiting for him. उसके पेरेंट्स उसके लिए वेट कर रहे थे. One looked at him and they knew what had happened. उन्होंने एक बार उसको देखा और वो उसमें से समझ गए कि क्या हुआ है. It does not matter, Anand said his father. उसके फादर ने बोला कि ये चीज मैटर नहीं करती, फर्क नहीं पड़ता इससे. If two people play, one has to lose. अगर दो लोग खेलते हैं तो एक को तो हारना ही पड़ता है. You won last time and you would win again. तुम last time जीते थे, अब तुम दोबारा एक बार कभी और जीत जाओगे. Let's try and see why you lost this time. चलो अब देखते हैं कि तुम इस बार क्यों हार गए हो. So the boy who had come home after losing a game of chess was Vishwanathan Anand. जो बॉय हार के आया था वो चेस का मैच, वो कौन था? विश्वनाथन आनंद था. और विशी आनंद, जिसे हम क्या कहते थे? विशी आनंद भी कहते थे. As he is known as to his friends. उसके फ्रेंड्स क्या बोलते थे उसको? विशी आनंद बोलते थे. Anand's mother Sushila Vishwanathan feels that they her son learned two very important lessons. उन्होंने उस दिन उसकी मदर ने फील करा कि उस दिन उनके सन ने, उनके बेटे ने दो इम्पोर्टेंट लेसन सीखे. क्या थे वो? Losing is a part of winning and winning comes easier. Losing क्या है? Part of winning की. और winning comes easier if you learn from your mistakes. अगर तुम अपनी गलतियों से सीखोगे तो जीत तुम्हें आसानी से मिल जाती है. Anand certainly learned these lessons well. आनंद ने ये lessons अच्छे से सीख लिए थे. He learned how to win and how to lose. उसने ये भी लर्न करा था कि कैसे जीतते हैं और कैसे हारते हैं. He has always tried to learn from his mistakes. उसने हमेशा ट्राई किया सीखने का अपनी गलतियों से. These lessons helped him with the world champion in 2000. वो जो लेसन थे उन्होंने हेल्प किया था जब वो 2000 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे. There was an old battered tricycle lying around the house when Anand was a toddler. एक क्या था? एक old battered tricycle थी जो कहाँ पे थी? उनके घर में के साइड में पड़ी हुई थी. जो जब आनंद क्या था? टोडलर था, मतलब बेबी था. It belonged to his elder brother. वो किसकी थी? उसके बड़े भाई की थी. It tilted to one side and the handle and pedals were twisted. वो एक साइड गिरी हुई थी और उसके हैंडल्स और पेडल twisted थे, मतलब टूटे हुए थे, घुमे हुए थे. And Anand's mother says he worked out with a way of riding it. He would happily ride it all over the house. आनंद की मदर ने बोला वो मतलब अच्छे से चलती थी, पूरे घर में अच्छे से घूमती थी ये साइकिल. So Anand's mother says that she loves chess. आनंद की मदर ने बोला मुझे तो चेस बहुत ज्यादा पसंद है. She enjoys mental challenge of the game and would solve chess problem printed in the newspaper. उनको मेंटल चैलेंजेस अपने ब्रेन के मतलब मेंटल चैलेंजिंग वाले गेम्स बहुत ज्यादा पसंद थे और उनको जो न्यूज़पेपर में चेसेस होती थी उनको प्रिंटेड चेसेस को सॉल्व करने में बहुत मजा आता था. Apart from being interesting and fun, she feels chess is good for developing mental skill. खाली उनको मतलब apart from interesting से अलग ये भी था, उनको ये लगता था कि आपकी mental skills को develop करने के लिए बहुत अच्छी होती है. So she used to play it with her elder son and daughter who were much older than Anand. तो वो किसके साथ खेलती थी? Elder son, जो उनके बड़े बेटे और बेटी थे, जो बहुत ज्यादा older थे, मतलब बड़े थे आनंद से, उनके साथ खेलती थी. Anand learned to play by watching them. आनंद ने कैसे सीखा? उनको देख के सीखा. He showed a real interest in game and from the age of 6 started playing it quite regularly with his mother. उसने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया उस गेम में और अपनी 6 ईयर से उन्होंने रेगुलरली उसके साथ अपनी मदर के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया था. When Anand was 9, his father was transferred to Manila. जब आनंद 9 इयर्स के थे उसके फादर कहाँ ट्रांसफर हो गए थे? उनके मनीला में ट्रांसफर हो गए थे. It was there that he became really good at chess. वहाँ पे वो बहुत अच्छे हो गए थे अपनी चेस गेम में. There was a television program on chess called Chess Today. एक टेलीविजन प्रोग्राम आता था चेस पे, उसको क्या कहते थे? चेस टुडे कहते थे.
इट वॉज ब्रॉडकास्ट इन द आफ्टरनून। वो कब ब्रॉडकास्ट होता था? आफ्टरनून में, मतलब दोपहरी में। When आनंद was at school, उस टाइम आनंद कहाँ होते थे? स्कूल में होते थे। आनंद मदर would make notes और रिकॉर्डेड फॉर आनंद, आनंद की मदर उसके लिए नोट्स बनाती थी और रिकॉर्ड कर लेती थी आनंद के लिए। एट द एंड ऑफ एवरी प्रोग्राम देयर वाज अ कंपटीशन। हर प्रोग्राम के एंड में क्या होता था? एक कंपटीशन होता था। You had to solve a chess puzzle and send it to the program director। आपको चेस पजल सॉल्व करनी होती थी और प्रोग्राम डायरेक्टर को सेंड करनी होती थी। The winner got a prize to the correct solution। विनर को क्या मिलता था? प्राइज मिलता था करेक्ट सॉल्यूशन पे। यूजुअली बुक्स ऑन चेस, सो बुक्स ही मिलती थी चेस पे। आनंद लव टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। आनंद को पार्टिसिपेट करने में बहुत मजा आता था कंपटीशन में। He was so after that he collected a lot of books। वो इतना जीत गए थे उन्होंने कि उन्होंने बहुत सारी बुक्स को कलेक्ट कर लिया था। In fact, after a while, the director of program told him, जो डायरेक्टर थे प्रोग्राम के, उन्होंने उसको बोला, आनंद, do not enter this contest। So, इस contest में enter मत करना। You can come and choose whatever book you want to from your collection, from our collection। तुम्हें एंटर करने की जरूरत नहीं, तुम आ सकते हो, बस चूज कर सकते हो हमारे कलेक्शन से जो भी बुक तुम्हें चाहिए। आनंद read these books thoroughly। आनंद ने वो बुक्स अच्छे से पढ़ी। In fact, he read whatever books he could lay his hands on। वो हर बुक पढ़ते थे जिस पर अपने वो हाथ रख देते। Like many boys of this his generation, आनंद loved reading अमर चित्रकथा। आनंद को क्या पढ़ने में मजा आता था? अमर चित्रकथा पढ़ने में मजा आता था। कॉमिक्स जो होती थी। And used to quiz the elder in the family on the stories। और क्विज करते थे अपने बड़ों के साथ स्टोरी, फैमिली में स्टोरीज पे। आनंद प्लेस टेनिस और स्विंग्स फॉर एक्सरसाइज। आनंद टेनिस खेलते थे, स्विमिंग करते थे एक्सरसाइज के लिए। एज अ वर्ल्ड क्लास चेस प्लेयर ही हैज टू कीप फिजिकली फिट। जैसे वर्ल्ड क्लास चेस प्लेयर थे, उन्होंने अपने आप को फिजिकली फिट रखना पड़ता था फॉर पीक परफॉर्मेंस। When he is relaxing with his family, जब अपनी फैमिली के साथ रिलैक्स कर रहे होते थे, आनंद likes to play games like a कैरम और कार्ड्स। उनको क्या गेम्स खेलने पसंद होते थे? वो कैरम और कार्ड्स खेलते थे अपनी फैमिली के साथ। So that's all for this story. I hope you all like the explanation of Chess Boy. Thank you and have a great day.